Hello, dear aspirant. Welcome to Guidely. My name is Rakhi, and we are having this class for those who are going for this upcoming NICL exam. Now we don't have much time. It is 27 today, and अगर देखा जाए तो 28 29 बीच में 2 दिन है, and then you have your exam. First of all, happy Ganesh Chaturthi to all of the viewers of this video. I wish Bappa takes care of you and also he blesses you और जो भी स्ट्रेंथ इस टाइम आपको चाहिए, जो भी ब्लेसिंग्स इस टाइम आप सीख कर रहे हो, वो सब आपको गणपति प्रदान करें. Well, let's talk about this video. What are we going to do today? I am going to tell you the strategy that you need to follow during your exam. It is not the whole strategy. This is the strategy that you need to follow during the exam. Okay. So I got certain comments on my previous videos of the same exam NICL, and many students asked like, ma'am, what should be the sequence to gain maximum marks here? Should we go with comprehension first or Prezi, or we should go with essay? So here I want to talk about the three strategies. What if you go with comprehension first? What if you go with Prezi first? What should be the flow? Okay. So every candidate has different abilities. Like many of you must be good with quants, while some of you are comfortable with verbal, I mean English more. While on the other hand, I can say some of you must be having very good knowledge of GA, right? Banking or GA. तो हम सबका ना अलग अलग चलता है, हमारी स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होती है. ठीक है, हर एक चीज को ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे, फोकस करेंगे, एंड देन एग्जाम के लिए अपने आप को फाइनली प्रिपेयर करेंगे. सो ऑल द बेस्ट. इस सेशन को ध्यान से देखना है और समझना है. ठीक है, चलो. 3 things ऐसे, the skills that are checked or that you need to possess. Creativity, what kind of? Do you need to paint the wall beautifully? No. Creativity of writing, this is creative writing. Structure, your essay should be well structured, and writing flow is very important. Nothing should deviate. I can say there should not be anything that is missing, or you have the feeling कि कुछ अजीब सा जा रहा है यहाँ पे. Okay. Risk, it is definitely time consuming if not planned properly. Second comes Prezi writing. Prezi is comprehension plus कंडेंसेशन. मीन्स आपको जो भी दिया गया है वो भी करना है, आपको पैसेज दिया है, आपको उसे छोटा भी करना है और उसे कॉम्प्रीहेंड भी करना है. तो कंडेंस का मीनिंग यहाँ पे यही है कि आप उसका निचोड़ निकाल रहे हो, जिसे कंडेंस्ड मिल्क होता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, देन ओनली यू कैन कंडेंस इट. एंड देन penalty for missing main idea if you miss the main idea or you exceed word limit. Then third comes comprehension, nothing new for you at all. Prelims, mains, in every exam you see comprehension, but here it is a little bit different. Reading is essential. Direct question answers only from the passage. You are supposed to write the answers. There is no multiple options for you. So there is no option, or there are no options that you need to choose. Comparatively lower risk out of these 3, lowest. Okay. Let's see option number 1. Option number A is start with essay, Prezi and comprehension. इसमें किन लोगों को benefit है? It is best for the people, for the candidate with strong writing skills and idea fluency. आप इससे कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं. Like last time when I was having my paid batch for SBI or IBPS, I saw many beautiful essays and I could say like, wow, such kind of writing skills. It was like excellent, amazing one. So if you have this kind of skill, if you are the one, then go with essay first. You begin when your mind is fresh and focused. You get the longest task done first, because here and there you need to be most creative. Comprehension, which is more direct, comes last and serves as a cool down for these people, because वहां पर आपको सिर्फ पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, तो इट इज गोइंग टू कूल यू डाउन. Option number B, if you start with
Tracy first, essay and comprehension. Best for those who want to lock the high precision task early. Because here you need to write precisely. You can't add a new thing. You can't remove an important thing. You need to write everything that is there, but the idea, not the words. Also, you need to paraphrase. So precision is most important here in Tracy. It requires maximum focus on meaning and you are least tired at the start. Essay can then be written with better flow, having seen another passage. Comprehension remains last as it is like the thing that is the least under pressure. So it will be easy to manage it at the end. Then comes the third strategy. Third one, where you are going with the comprehension first, right? It is suitable for those for a gradual build-up of confidence of who need time to mentally settle in. The people who just feel anxious when it comes to write something about, and you need some warm up first. You just like you are able to write 3 to 4 lines, but then you are out of your thoughts. You are unable to think something new. For those, comprehension will be the best strategy. The questions are there, the passage is here. Read, find the answer, paraphrase, rewrite in your words. So you will get to know some content, some idea, and then it will be easy to go with précis at second and essay because it is going to be the end task. So you can use all your time here. So précis then becomes easier since you have already in reading mode. Essay is saved for last when ideas have had time to subconsciously develop in your brain. So these are the three strategy how to start. Now you need to find here out what is best pick for you. Okay. So if I were you, what should I have picked? Okay. So I think I will go with the essay first. There's a reason because I think for me, this is the part where I need to think a lot. So with fresh mind, I can build some great content because I can think like I'll take 2 to 3 minutes to think and jot down my points and then I will elaborate them. I'll keep it very structured. For me, if I do it first, then for the rest of the two topics, I'll be very, cool minded. So this works for me. But as I've said, it is totally up to you. Whatever works best for you, go with that. My teachers throughout my school journey or college journey, they used to say, always go with the easy thing first. So when it was like MCQs, when if any exam is of MCQs, then we definitely choose the easiest first. But as it is about writing and it is creative writing, you need to think. So I will go with the most difficult one first. But all the best for your strategy. Let's talk about the further points. Okay, so what are the factors to consider when choosing your order? Okay, if you are still unable to think about it कि okay मैम said मैम का ये best है but मुझे नहीं पता मेरा best क्या है. So first thing comes is your typing fluency. Okay, can you deliver with speed and clarity? Like some of us are very good writers, but we make a lot of mistakes. When we write, we forget that we make grammatical mistakes because our speed is so good and वहां पर ना spellings messy हो जाती है, grammar messy हो जाता है. So for that, essay demands the longest and most structured response. If your typing is slow or error prone, as I've said, starting with an essay can eat up precious time. So this thing is not my problem. So I'm okay with essay. But if you make grammatical mistakes or spelling mistakes, like unwillingly, you don't want them, वो बन जाती है बस है ना? You will not go with it first. On the other hand, confident typist can knock it off early with clarity and still save time. अगर आपको error नहीं करनी है and you are very good at typing, then go with essay first. Key typing benchmark for the exam.
WPM, that is called words per minute. Aim for at least 30 to 35 words per minute with 90% accuracy for descriptive writing. Typing. Why 90%? See, देखो, no one is able to write 100% correct things. We are human and we make mistakes. So there is time to check and to rectify your mistakes. So aim for 90% accuracy. Don't make silly mistakes and don't repeat them, especially. Typing comfort zone. If you are struggling to type 100 to 120 words in 5 minutes, essay should not be your first choice. You are definitely going to write it slowly. And if you write it slowly here, then time is absolutely precious and it won't be good for you. How to improve typing speed? Well, now in just 2 to 3 days, we can't do much, but still, at least something is better than nothing. So use typing.com or 10 fast fingers. I have recommended these earlier as well in my previous sessions for IBPS and SBI. So type previous year's essays on Google Docs using a timer. Practice with real exam prompts to simulate format and like pressure. Focus more on accuracy first and speed will follow. So I'll tell you what happens actually. जैसे हम लोगों को ना फोन में लिखने की आदत होती है, बट फोन में ऑटो करेक्ट होता है. ऑटो करेक्ट हमारे मिस्टेक्स को हमें दिखाता रहता है या करेक्ट करता रहता है. हम वर्ड फाइल पे नॉर्मली टाइप करते हैं, हमारी मिस्टेक्स हमें वहां पे दिख जाती हैं. वी कैन सी अंडरलाइन ऑफ रेड जिगजैग लाइन. ओके, सो वो हमें ना कुछ नया सीखने नहीं देती हैं, बिकॉज आपने राइट क्लिक किया, स्पेलिंग को करेक्ट कर लिया. बट इन एग्जाम सब कुछ लाइक एआई के द्वारा चेक हो रहा है, कीवर्ड्स फिक्स्ड हैं, प्रॉम्प्ट्स फिक्स्ड हैं. तो आपको ट्राई करना है कि आपके मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए. तो प्रैक्टिस भी ऐसी करो जो शुरू में आपकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, बिकॉज यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू. Note, if you are not sure about typing, begin with prescient comprehension where fewer words are needed and pressure is lower. For those जो typing में comfortable नहीं है. बेटा आइडिया क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? जब आप ऐसे के टॉपिक को बनाते हो ना, मतलब जो आपको ऐसे मिला है, सपोज अगर मुझे लिखना है कि हमें प्लास्टिक का यूज कम कर देना चाहिए, पहले मुझे खुद इस बॉटल से पानी पीना चाहिए. तो ये प्लास्टिक बॉटल है, इस पे लिखा है एक बार के बाद फेंकना है. कल ली थी बट मैं आज ही पानी पी रही हूँ. दैट इज रॉन्ग. बट आज मैं इसको क्रश करने वाली हूँ, बिकॉज कल रात को ली है तो आज खत्म कर देनी है. अगर हमें लिखना है कि हमें प्लास्टिक का यूज कम कर देना चाहिए, आई विल पिक माई ओन एग्जाम्पल दैट पीपल डू दिस, है ना. Despite reading the warning that crush the bottle after use, just after use, I'm still doing it. This is called idea generation. मुझे कुछ नया नहीं पिक करना, मुझे कुछ बड़ी बड़ी पॉलिसीज का एकदम से जिक्र नहीं करना. I'll pick the common, the most common idea, and then I will develop it further. Then I'll talk about the policies. Then I will talk about the countries or the zones जिनमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है. लाइक हम इनको पानी में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, ये समुद्र में जाती हैं, इससे ये होता है, वो तो बहुत सारी चीजें देन वी कैन टॉक अबाउट. बट वन आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर ऐसे का टॉपिक आपको लाइक समझ में नहीं आ रहा है, खासकर जब आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, अनक्लियर है, तब आपको ये नुकसान कर सकता है. वहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको टाइम लग सकता है. फिर आपको क्या करना है? Can I instantly think of 3 solid points for either of the two topics? 30 सेकेंड हो गए, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, लीव इट. मुझे प्लास्टिक मिला था, मुझे बॉटल का आइडिया आ गया, मुझे एक आइडिया मिला, मुझे दूसरी एक पॉलिसी मैंने ले ली, फिर मैंने ले लिया व्हाट आर द सजेशंस एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट. इस बार टॉपिक ऐसा है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, देन आई नीड टू स्टॉप. I'll stop here, go to the next section, I'll solve that, then the next one. कुछ ना कुछ तब तक मेरे मन में आ जाएगा, then I can make it up. स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? एकदम से पेपर देखा आपने, क्वेश्चंस देखे और आप बहुत सारे टेंशन में आ गए. What to do then? The first 5 minutes of the exam set your mental tone. Sorry. Starting with your strongest section builds confidence, as I told.
तो अपना कंफर्ट जोन आप लाइक पता कर लो, which section you want, which section actually tempts you, in which section you are the fastest one. ये आपको मॉक्स में पता चल गया होगा, अभी भी नहीं पता चला तो NI स्किल के मॉक्स को जरूर जरूर लगाओ, ठीक है। Which task feels more natural? Idea writing, कंडेंसिंग कंटेंट और आंसर्स डायरेक्टली, बिकॉज तीनों चीजें हैं, तो तीनों में से कोई स्किल जो आपकी सबसे अच्छी हो उसे कर दो। नर्वसनेस में बिल्कुल भी लाइक मत आइएगा, अपने आप को बचाना है इन सब चीजों से। चाहे तो कॉम्प्रिहेंशन या प्रेसिस से स्टार्ट कर लो, पहला जो वो करो जो आपको एनर्जाइज दे, जो आपको परेशान ना करे, ठीक है। किन चीजों पे फोकस करेंगे? स्टार्ट विद अ मेंटल चेक इन। कैसे? बिफोर टाइपिंग अ सिंगल वर्ड ये काम कर दो। क्या है ये चीज? सारे के सारे टास्क को आराम से पढ़ेंगे बिना टेंशन के तीनों को। अपना अटेम्प्ट ऑर्डर शुरू के 1 से 1.5 मिनट में चेक कर लेंगे, पता कर लेंगे, खुद को बता देंगे ये करने वाला हूं मैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और खुद को याद दिलाएंगे, 1 टास्क एट अ टाइम, आई हैव प्रैक्टिस दिस, ठीक है। फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। गए एग्जाम में तीनों को देख लिया, माइंड मेकअप किया, शुरू के 1 से 1.5 मिनट में क्या करना है पहले, ठीक है। डीप ब्रेथ, मुझे एक बार में एक ही टास्क करना है और पूरे दिल से करना है और टाइम के अंदर अंदर करना है। दिस इज व्हाट नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स। जो अगर ब्लैंक आउट हो गए तो क्या करना है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एक टास्क से दूसरे टास्क पे जाना है। बाई चांस अगर आप ब्लैंक हो गए, आप होगे नहीं मुझे पता है, यूज 5-3-1 मेथड, 5 मिनट्स का जॉट पॉइंट्स डाउन, 3 मिनट के बुलेट पॉइंट्स और एक सेंटेंस उनको यूज करते हुए। 5-3-1 जॉट 5 क्विक कीवर्ड्स, 3 बुलेट पॉइंट्स और एक सेंटेंस, उन सबको यूज करके आपको बनाना है। बहुत इजी है, 2-3 बारी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। रिकवरी की टेक्निक क्या है? 30 सेकेंड में। कुछ नहीं समझ में आ रहा, स्क्रीन से इधर देखो, नीचे देख लो, साइड में देख लो, ऐसे देखना कि टीचर को ये डाउट ना हो कि आप चीटिंग कर रहे हो, जो भी वहां पे इन्विजिलेटर है, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स किया, 5 बार काउंट किया, वापस आए, खुद से बोला लेट मी जस्ट स्टार्ट, इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट ना, यू जस्ट नीड टू डू इट। और जब करना शुरू करोगे परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। ओवर थिंक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, परफेक्शन के लिए एम नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे, पहले अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पॉइंट्स लिख लिए हैं, लिखते हुए जाना है, अपने आप आगे आगे ज्यादा क्लैरिटी और आप अपने आप ज्यादा एक्टिव होते चले जाओगे। लाइक आप देखोगे ना, बड़े आराम से एक बार लिखना शुरू करोगे, इतने सारे पॉइंट्स उस चीज के आते जाएंगे। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो पॉइंट्स है ना उनको मिक्स नहीं करना है, एक पॉइंट को लेना है, एक पॉइंट को लिया, उसका थीसिस स्टेटमेंट प्रोवाइड किया, उसका एविडेंस, उसका एग्जाम्पल कोई ना कोई जो उसको सपोर्ट करता हो, जिसे हम बोलते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स, रखा, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड एग्जाम्पल रखा, खत्म। सेकेंड पॉइंट रखा, थीसिस स्टेटमेंट दिया, उसका भी सपोर्टिंग डिटेल्स रखी एंड देन उसका भी एक एग्जाम्पल दिया। दिस इज हाउ यू राइट, इट्स वेरी इजी, ठीक है। हर सेंटेंस को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, लिखने के बाद में टाइम होगा उसको ठीक कर लो। सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जब आप लिख रहे हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस अपना बना के रखना है। आपने अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस की है, लाइक फर्स्ट डे से सेकेंड डे से, आपकी अभी तक जैसी भी प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस डेफिनेटली रंग लाएगी। बट अगर आपने यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा भी लाइक लूज किया, आप टेंशन में आ गए, कुछ भी ऐसा रखा, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और क्या आप चाहोगे कि इस पॉइंट पे आके आप कोई भी गलती करो? आई डोंट थिंक सो कि इस पॉइंट पे आके आप कोई भी गलती करना चाहोगे। जब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, अगर आपने तब गलती की तो फिर उस गलती की कोई भी बेटा सुनवाई नहीं होती है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से लाइक याद रखो कि आप यहाँ पर कोई भी गलती अपनी तरफ से नहीं करोगे। अब जब जो भी लिख रहे हो ना, वो आप ऐसा लिखोगे कि एकदम बेस्ट साउंड करना चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा ना आए जो आपको ये दर्शाए कि यहाँ पर आपने कोई भी गलती कर दिया, ठीक है। एक बार देखो, इस पॉइंट को खुद से पढ़ के देखो, एक सेकेंड, इस पॉइंट को एक बार खुद से पढ़ के देखो, ये बात, ये पढ़ो एक बार।
क्या समझ में आता है? इस पॉइंट को पढ़ के क्या समझ में आता है? इस पॉइंट को पढ़ के यही समझ में आता है कि पहले ना काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही परफेक्शन से कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम पहले लिखना तो शुरू करें। अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। हम लिखना ही नहीं शुरू कर रहे हैं और सिर्फ़ अपने फ्लो में चले जा रहे हैं, तो फिर डेफ़िनिटली हमारे गलती होने के चांसेस हैं। आप में से जितने भी लोग एनआईसीएल एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, जस्ट अ सेकंड। आप में से जितने भी एनआईसीएल एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, आई होप सभी लोगों ने मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो अभी भी आपके पास में टाइम है। आप इज़िली अपने मॉक टेस्ट को लगा सकते हो और ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आप मॉक टेस्ट देते हो, उस मॉक टेस्ट को देने के बाद में आपके पास ये भी ऑप्शन आता है कि आप उसका एनालिसिस करा लो। तो अभी भी अगर आप इन 2 दिनों में कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हो और मॉक टेस्ट लगा के आप उसका सॉल्यूशन अगर मांगते हो तो वो भी आपको इजीली मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। आई विल शो यू कि कैसे अभी भी लास्ट मोमेंट पे आप खुद को हेल्प कर सकते हो। इतना अच्छा ये फीचर है गाइडली की ऐप पे, जो आपको एनआईसीएल मॉक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई विल शो यू। और अभी गणेश चतुर्थी वाला डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है? तो आपको वहाँ पर भी बहुत हेल्प मिलेगी। वेट अ सेकंड। आई वांट टू टेक यू टू दैट पेज डायरेक्टली, ताकि आपको वहां से एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें उस पे जाना है ना। बस मेरा ही वो पेज आ जाए पहले। ये रहा हमारा। एसबीआई पीयू का है, आईबीपीएस पीयू का है, और है ये हमारा एनआईसीएल वाला है ना। तो हम एनआईसीएल वाले पे चलते हैं एंड आई विल रीडायरेक्ट यू टू दैट पेज ओनली। अभी देखो, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। नाउ नाउ कैन यू सी इट? हम्म तो ये हमारा पेज खुला है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, ये देखो ऐसे करके ना आपके पास में देखो पूरा का पूरा पेज ही खुलता है। सपोज आपको एक टेस्ट यहाँ पे देना है, आप लोग टेक टेस्ट पे यहाँ गए, यहाँ पे लिखा है कि भाई हमारा ये तीनों के दिन 10-10 नंबर के आएंगे। देन यू वेंट ऑन दिस ऑप्शन, आपने ये किया आई एम रेडी टू बिगिन। और देखो आपके पास में कितने अच्छे से इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर, पहला क्वेश्चन है। ये हमारी वर्ड लिमिट है, हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को सोचेंगे। तो इंश्योरेंस सेक्टर पे पूछ रहा है क्या फर्क पड़ा है, बट आपको पता है क्लाइमेट चेंज का ग्लोबली हर चीज पे फर्क है। तो आप स्टार्ट करोगे ग्लोबली एंड देन यू विल स्विच टू द इंश्योरेंस सेक्टर। आप यहाँ पे तीन, क्योंकि 250 का है तो दो आपके दो बॉडी पैराग्राफ्स इनफ है। एक इंट्रोडक्शन, दो बॉडी पैराग्राफ एंड आपका कंक्लूजन। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखो प्रेसी आ गया, छोटा सा प्रेसी राइटिंग होता है। और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आ गया। कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन होंगे, पांचों के पांचों इसी छोटे से पैसेज से हैं। सपोज आपने आंसर लिखा और आपने यहाँ पे जाके इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। अब देखो सबमिट करने के बाद आती है सबसे बड़ी हेल्प। ये मैंने यहाँ पे लिखा मेरा स्कोर, ऑब्वियसली मैंने कुछ अटेम्प्ट किया तो मेरा स्कोर यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है। यहाँ पे आपका स्कोर आपको दिखाएगा। अब देखो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे मेरे पास तो ये नहीं है बट आपके पास आपने लिया हुआ है, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन है, आप अगर इसमें जाते हो तो इसमें जाने के बाद में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपकी राइटिंग को हम लोग पूरी एक्सपर्ट्स की टीम है जो यहाँ पे चेक करती है। उसके अलावा आपको सैंपल पीडीएफ मिल जाएगा कि आपको ना कैसे इसके ऊपर लिखना है। आपको ये ऐसे का मिला, प्रेसी का मिला, सिमिलरली आपको ये कॉम्प्रिहेंशन का भी मिलता है। तो आपके लिए इतनी सारी हेल्प्स हैं यहाँ पे। तो अगर आपने अभी तक इनमें से कोई भी मॉक ऐसा नहीं लगाया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो फॉर इट। और आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ भाई, मैक्सिमम बेनिफिट।
और अभी देखो गणेश चतुर्थी का भी स्पेशल लाइक डिस्काउंट चल रहा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। जितने भी आपके बैचेस, जितने भी आपके कोर्सेज़ हैं, सब पे ये लगेगा। तो ये तो यहाँ पे जैसे अभी ऑल इन वन पीडीएफ दिखा रहा है, बट आप अगर इस वाले पे भी जाते हो, तो आपको खाली मॉक के लिए भी डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मैंने ये लिया हुआ है ना, आपने अगर नहीं लिया है तो आपको इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे आता है। तो गाइडली ने आपके लिए ये बहुत ईज़ी किया हुआ है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सो प्लीज़ गो फॉर इट। अभी भी टाइम है, दिन में 2 से 3 मॉक्स लगा लो, आराम से आप लगा सकते हो। कितना टाइम सबके पास बचता है, आपके पास भी है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई ट्राई टू ब्रिंग वन मोर सेशन फॉर यू, स्पेशली जो आपको लाइक बूस्ट करे, एनकरेज करे, मोटिवेट करे। एंड बिलीव मी गाइस, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग ना, ऐवे ही नहीं कर रहे हो, कुछ पाने के लिए कर रहे हो। और ये आप ही के पाने का मोमेंट है। एक भी आज तक 11 साल में एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा मैंने जिसने मेहनत की हो और उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। सो यू आर द नेक्स्ट, रिमेंबर। Take care. Bye bye. I'll see you all in the next video. All the best.